Assalamu alaikum students. This is your teacher, Ma'am Bushra Shehzad Khan, and the topic which we have to discuss today is external environment. If we consider the whole world as universal set or organization uska subset ho, then what is the remaining part? Yes, you are right, it is external environment or external entities. So if I ask you to drive a definition of external environment from this metaphor, what is the definition? The definition will be external environment constitutes all those elements that exist outside the boundary of organization, and those elements have an effect on all or any part of the organization. डेफिनेशन ड्राइव करने के बाद दूसरा सवाल ये है कि वो कौन सी एंटिटीज़ हैं या कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करती हैं. I again repeat, there are various entities, constituencies, or stakeholders that exist in external environment. Now, first of all, we need to identify who are stakeholders. Stakeholders are basically those elements that influence the business either directly or indirectly. Now, let's extend the discussion further. पहले इमेज में स्लाइड में आपको जो डिस्प्ले हो रहा है वो पिक्चर क्या डिपिक्ट कर रही है. A man is chained with debts, and this person owes money to the second person standing next to him. So, who is the stakeholder? Any guess? Yes, you are right. It's a creditor. अब सवाल ये है कि क्रेडिटर के लिए वैल्यू एडिशन कैसे क्रिएट की जा सकती है. सिंपल, द बोरर शुड बी एबल टू पे डेट्स एंड लोन्स ऑन टाइम. फिर मज़ीद ये भी जानने की ज़रूरत है कि क्रेडिटर इंडिविजुअल भी हो सकता है, जैसे कि एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं. एंजल इन्वेस्टर्स प्रोवाइड सीड मनी फॉर अ स्टार्टअप. दूसरा ये कि क्रेडिटर कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, जैसे कि माइक्रो फाइनेंसिंग बैंक्स, या पाकिस्तान में एक इदारा है इग्नाइट जो कि सीड मनी प्रोवाइड करता है. नाउ वी कैन सी द रियल टाइम एप्लीकेशंस ऑफ इट. आपने विजय मलाया के बारे में सुना होगा. ही वॉज द फाउंडर एंड ओनर ऑफ किंगफिशर एयरलाइंस इंडिया, बट इट इज़ डिफंक्ट नाउ. डिफंक्ट का क्या मकसद? इट इज़ नो मोर फंक्शनल नाउ. He is the defaulter of Indian banks and facing charges in the courts. So the crux of the story is Kingfisher Airline is affected by the actions of Vijay Mallya. पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हमारे सामने मियाँ आफ्ताब अहमद की मिसाल वाज़ेह है. He was the owner of Fazal Sons Group that deals in cotton mills. He is also the defaulter of Pakistani banks, and this offensive act has caused troubles for his enterprise. तो ये है क्रेडिटर के हवाले से कुछ डिटेल्स. अब सेकेंड इमेज में यू कैन सी सम पीपल हैंडलिंग देयर इन्वेस्टमेंट और ड्यू शेयर. व्हाट यू कैन कॉल देम? Yes, you are right. They are shareholders, or in other words, you can call them stockholders. They invest in the company by buying the shares, and their return on investment is dividends. आप इस रूल से भी वाकिफ़ होंगे कि कंपनीज कैन गेट delisted for not providing dividends to shareholders for a period of more than 3 years. सवाल यह है कि इससे बिजनेस में क्या फ़र्क पड़ेगा. कंपनी विल लूज क्रेडिबिलिटी एंड पीपल विल स्टॉप इन्वेस्टिंग इन इट. दूसरा एक अहम नुक्ता जो शेयर होल्डर्स के हवाले से काफ़ी अहम है वो ये कि देयर शुड नॉट बी एनी मैनिपुलेशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और मिस रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा. इन दिस रिगार्ड वी कैन सी एन एग्जाम्पल ऑफ इलॉन मस्क. You can see the tweet by Elon Musk. He announced to take Tesla private at $420. कहानी कुछ इस तरह से है कि जिस वक्त ये ट्वीट की जाती है उस वक्त टेस्ला की शेयर प्राइस थी $340. नतीजतन हुआ ये कि शेयर प्राइस एकदम से इंक्रीज़ होके $390 हो जाती है, और फिर जब ये न्यूज़ पता चलती है कि ये एक फेक न्यूज़ थी और ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो शेयर प्राइस डिक्रीज़ होकर 240 या $250 हो जाती है. So what's the outcome? Elon Musk basically misled the investors. SEC, which is Securities and Exchange Commission, took action against it, and Tesla had to pay $1 million as a fine as penalty. And Elon Musk lost his chairmanship position from the board as well. So this was about creditors and shareholders. The third image is an individual carrying a laptop, which means he is rendering his services to the company. Any guesses who is the stakeholder? Yes, you are right. He is the employee of a company. Or in other words, we can call him human capital.
You must be wondering कि हम एम्प्लॉय को ह्यूमन कैपिटल किस बिना पे कह रहे हैं. The answer is very simple because employees acquire knowledge, skill set, experience, training, loyalty, organizational commitment which ultimately benefits the organization or business. अब सवाल ये रेज होता है कि एम्प्लॉयज़ के लिए वैल्यू एडिशन किस तरह क्रिएट की जाए. The answer lies in HRM field. They should be provided market competitive salary, job security, and no discrimination in terms of glass ceiling effect. Moreover, you have read in the newspapers or in recruitment ads, companies अपने recruitment ads में mention करती हैं कि we are an EEO employer. That means we are an equal employment opportunity employer. Sometimes they also mention females are encouraged to apply, which means they are discouraging any sort of discrimination, particularly on the basis of gender. Last but not the least is perks or fringe benefits which should be provided to the workforce. अब सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि fringe benefits किसे कहते हैं. They are basically the benefits additional to monthly salary or wages और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि एम्प्लॉयज़ की जॉब सेटिस्फेक्शन क्रिएट की जाए. It largely includes provident fund, medical allowance, transportation fuel, golden handcuff. Golden handcuff क्या है? It is basically the financial incentive or stock option given to retain the technical experts of a company. And then we have EOB scheme. EOB stands for Employment Old Age Benefit. EOBI that is Employment Old Age Benefit Institution पाकिस्तान में एक इदारा है जो ओल्ड एज एम्प्लॉयज़ की पेंशन बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है और इसकी फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से है कि 5% इज पेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड 1% इज कंट्रीब्यूटेड बाय द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम हिज बेसिक सैलरी. अब कुछ डिटेल्स आपको पेंशन बेनिफिट्स के बारे में भी प्रोवाइड कर देते हैं. The first is basically the old age pension that is provided at the time of retirement. The second is invalidity pension. It is provided due to disability or accident during employment. The third one is survivor's pension, which is provided to the spouse of deceased person. इसके अलावा बेटर वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट करने के लिए भी कंपनीज बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स ले रही हैं. The first example is work from home facility. But in my opinion, this is not an extra perk given to employees nowadays because it has become an only option in current pandemic situation of 2020. इससे रिलेटेड एक और बेनिफिट है जिस पे बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है. इट इज़ फ्लैक्सिबल स्केजुअलिंग और इन अदर वर्ड्स यू कैन कॉल इट कंप्रेस्ड वर्क वीक. कंप्रेस वर्क वीक क्या है कि अगर आपने वीकली बेसिस पे फॉर इंस्टेंस 40 आवर्स कंप्लीट करने हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि 6 डेज़ में 40 आवर्स कंप्लीट किए जाएं, बल्कि 3 to 4 डेज़ में भी आप अपने 40 आवर्स कंप्लीट कर सकते हैं. इट सिंपली मीन्स लॉन्ग वर्किंग डे or long working hours of the day and fewer working days in a week. Japan is basically the best example to study it because Japan has the longest working hours. Japan एक workaholic society है, उनका काफ़ी intense working culture है and Japanese are basically suffering from karoshi. Students, I again repeat, Japanese are suffering from karoshi, Karoshi. सवाल ये पैदा होता है कि करोशी क्या है. इट इज़ बेसिकली अ डेथ कॉज ड्यू टू ओवरवर्क. इस कॉन्टेक्स्ट में माइक्रोसॉफ्ट जापान ने कंप्रेस वर्क की फैसिलिटी अपने एम्प्लॉयज़ को दी है एंड नाउ द एम्प्लॉयज़ हैव टू वर्क ओनली 4 days अ वीक एंड दे एंजॉय 3-day वीकेंड. और ये रिपोर्ट किया गया है कि वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी इससे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है. तकरीबन 40% उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई है और 23% इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट में रिडक्शन आई है. बहरहाल फ्लैक्सिबल वर्क स्केजुअलिंग के बेपना फ़ायदे हैं. इट मीन्स रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कम्यूटिंग टाइम इज़ लेस, बूस्ट क्रेडिबिलिटी एंड लॉयल्टी विद द ऑर्गेनाइजेशन. अब आपको फोर्थ इमेज नज़र आ रहा होगा जो कि हमारा नेक्स्ट स्टेक होल्डर है. इस स्टेक होल्डर को आप क्या आइडेंटिफाई करेंगे? अ कपल इज़ देयर, दे आर कैरिंग द शॉपिंग बैग्स, दे आर कैरिंग द ग्रॉसरी बैग्स. हु इज़ द स्टेक होल्डर? एनी गेसेस? येस, यू आर राइट, दे आर द कस्टमर्स. अब सवाल ये है कि कस्टमर के लिए वैल्यू एडिशन कैसे क्रिएट की जाए.
Basically, customers want quality product in reasonable pricing. They discourage over promising and under delivery. यहाँ पर साइकोग्राफिक शिफ्ट को भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है. साइकोग्राफिक शिफ्ट क्या है कि वक्त के साथ साथ कस्टमर के बाइंग बिहेवियर में तब्दीली का रूनुमा होना. फॉर इंस्टेंस, nowadays they prefer online shopping rather than brick and mortar stores. They prefer organic food rather than frozen or processed food items. And nowadays they prefer web series rather than TV shows. फर्दर इस एस्पेक्ट को हम जनरेशनल एनालिसिस से भी डिस्कस कर लेते हैं. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट बेबी बूमर्स. इनका टाइम पीरियड है 1949 टू 1964. मतलब ये कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बच्चों की बर्थ में जो इजाफा हुआ था उसको हम बेबी बूम कहते हैं. और मिलेनियल्स इसके बाद आते हैं जिनका टाइम पीरियड है 1980 टू 1995. ये वो जनरेशन है जिसने इंटरनेट की दुनिया में आँख खोली है. सवाल ये है कि बेबी बूमर्स और मिलेनियल्स की एग्जाम्पल को क्यों हाईलाइट किया जा रहा है स्पेसिफिकली. As a matter of fact, companies are doing extensive amount of research, marketing surveys on the buying behavior of baby boomers and millennials. So the product or service can be designed according to their expectations. और ये रिपोर्ट भी किया जा रहा है कि एज़ कम्पेयर टू बेबी बूमर्स, मिलेनियल्स का रुझान ज़्यादातर जो है वो इम्पल्सिव बाइंग की तरफ होता है. ये ऑनलाइन शॉपिंग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जबकि बेबी बूमर्स कोई भी चीज़ ख़रीदने से पहले सीइंग एंड टचिंग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं. दूसरा एस्पेक्ट चेक करते हैं. आज से पहले कोई भी ये नहीं सोच सकता था कि काउंसलिंग, कोचिंग, मेंटोरिंग या थेरेपी पे भी पैसा खर्च किया जा सकता है. बट मिलेनियल्स आर डूइंग इट बिकॉज दे आर प्रोन टू स्ट्रेस, दे आर प्रोन टू डिप्रेशन एट अ वेरी अर्ली एज. Millennials are also spending on cosmetic surgery और बोटॉक्स इंजेक्शंस, जबकि बेबी बूमर्स के नज़दीक ये सब्जेक्ट ही टैबू है. तो इस पे पैसा खर्च करने का तो सवाल ही मुमकिन नहीं होता. एनीवेज, द बॉटम लाइन इज कस्टमर अपने पैसे के अगेंस्ट यूटिलिटी या वैल्यू चाहता है और कंपनीज प्रॉफिट अर्न करने के लिए इस बात को मुमकिन बनाने की हर मुमकिन जो है वो कोशिश करती हैं. सो दिस इज़ द बॉटम लाइन फॉर कस्टमर फैसिलिटेशन. The fifth image is in front of you, or what you can see here, a package which is ready to be transported or delivered. So any guesses who is the stakeholder? Yes, you are right, he is the supplier or distributor. सवाल ये पैदा होता है कि हम अपने सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हैं. बेसिकली देयर पेमेंट्स शुड बी डन ऑन टाइम, दे शुड नॉट बी डिलेड. इस हवाले से हम एप्पल और क्वेलकॉम का रॉयल्टी डिस्प्यूट केस डिस्कस करते हैं. क्वेलकॉम बेसिकली एप्पल को आईफोन्स की चिप्स और मोडेम्स सप्लाई करता है. एप्पल ने एलिगेशन लगाई थी. मामला कुछ इस तरह से था कि डिस्प्यूट कुछ इस तरह से रेज हुआ कि एप्पल ने एलिगेशन लगाई कि क्वेलकॉम कुछ ज़्यादा ही लाइसेंसिंग फ़ी चार्ज कर रहा है, और दूसरी जानिब क्वेलकॉम ने ये एलिगेशन लगाई कि एप्पल इनके ट्रेड सीक्रेट्स इंटेल को प्रोवाइड कर रहा है, और इंटेल भी एक चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. Anyhow, Qualcomm and Apple, they both entered into a deal, they both entered into an agreement, और इस डील का फ़ायदा ये हुआ कि Qualcomm को being a supplier उनके 24% शेयर प्राइस में उनकी इजाफा हो गया. सो इस तरह से आप अपने सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर को फैसिलिटेट कर सकते हैं या उनके लिए वैल्यू ऐड कर सकते हैं. और अगर हम ऐसा ना कर सकें, देन द बॉटम लाइन इज़ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी विल बी सफर्ड और विल बी अफेक्टेड. जो नेक्स्ट स्टेक होल्डर है आपके सामने, दैट इज़ वेरी वेरी इजी टू गेस, एंड येस यू आर राइट, इट्स द गवर्नमेंट. अब सवाल ये पैदा होता है कि गवर्नमेंट स्टेक होल्डर कैसे है. गवर्नमेंट बेसिकली रेगुलेटरी बॉडीज़ बनाती है और इंडस्ट्री प्लेयर्स पे ये लागू है कि वो रेगुलेटरी बॉडी के बनाए हुए लॉस को, स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करें, फॉलो करें. And if we talk about various regulatory bodies in the context of Pakistan, then number one is DRAP. DRAP stands for Drug Regulatory Authority of Pakistan. ये basically regulate करती है medical या pharmaceutical companies को. Then we have HEC, Higher Education Commission, which is the regulatory body for universities and HEIs, that is higher education institutions. Then we have PAMRA, which regulates and issues licensing to TV channels. Then we have NAPRA, it basically regulates electricity.
Then we have OGRA, they basically regulate the petroleum companies. Then we have PTA, which regulates the telecom sector. Then we have CPAC authority, जो कि recently बनाई गई है. It ensures basically कि जो tax concessions प्रोवाइड किए गए हैं वो SMEs को और SEZs को, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को दिए जा रहे हैं या नहीं, एंड दे बेसिकली ओवरसी द CPAC प्रोजेक्ट्स. अब कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं रेगुलेटरी बॉडीज़ के हवाले से, जिससे हमें ये आइडिया होगा कि बिजनेसेस किस तरीके से अफेक्ट होंगे अगर रेगुलेटरी बॉडी अपना रोल पॉजिटिवली प्ले ना करे. द एक्सक्लूसिव एग्जाम्पल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान इज पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी, और यू कैन कॉल इट CAA, विच रेगुलेट्स द एविएशन इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान. इसका रोल जो है वो पिछले कुछ अरसे में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया है, पर्टिकुलरली आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ मई 2020, जहाँ पे PIA का एक प्लेन क्रैश हुआ था मॉडल कॉलोनी कराची के नज़दीक और 97 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे. Civil Aviation Authority was highly criticized for granting fake licenses to pilots. और इंटरनेशनल एक इदारा है IATA, which stands for International Air Transport Association, और उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि ये सारे के सारे इंसिडेंट में ह्यूमन एरर मौजूद था एंड देयर वाज अ लैप्स इन लाइसेंसिंग एंड सेफ्टी बाय पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी. तो इस रेगुलेटरी बॉडी के नेगेटिव रोल की वजह से पूरी एविएशन इंडस्ट्री को इसका खमियाजा जो है वो फेस करना पड़ा. Then the next thing which we have to discuss with respect to governmental body is RTI. Question is, what is RTI? RTI is basically request to right to information. I again repeat, it is basically a right to information जो कि हर सिटीज़न का एक फंडामेंटल राइट है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है. RTI को के लिए कोई भी सिटीज़न गवर्नमेंट बॉडी या PIO पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को रिक्वेस्ट फाइल कर सकता है और इंफॉर्मेशन तक एक्सेस हासिल कर सकता है अगर वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल नेचर की ना हो. RTI के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं. पहला तो ये कि स्टेट और सिटीज़न बॉन्ड क्रिएट होता है एंड ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इज़ इंश्योर्ड. फर्दर लेट्स डिस्कस सम रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ RTI. फॉर इंस्टेंस, द सिटीजन्स कैन सीक डेटा, द सिटीजन्स कैन सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम गवर्नमेंटल बॉडीज़ regarding minority quota in hiring of staff. Number 2, expenses spent on Chief Minister House, the relief packages spent by government during COVID-19, or the remittances spent by governmental body for dam construction. So this was basically the stakeholder approach regarding supplier and distributor. Then we have image number 7 in front of you. Here you can see in the picture so many workers are there. They are chanting slogans for wages and working hours. Guess who is the stakeholder? Yes, you are right. They are labor union or worker union. अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि लेबर यूनियन या वर्कर यूनियन को कैसे फैसिलिटेट किया जाए. PIA प्लेन क्रैश का जो इंसिडेंट हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया उसी को फर्दर एक्सटेंड करते हैं और यहाँ पे हम एग्जाम्पल जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ ऑफ पैल्पा. पैल्पा स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान एयरलाइंस पायलट एसोसिएशन क्लब. हुआ ये था कि बेसिकली ड्यू टू May 2020 इंसिडेंट मैनी पायलट्स वर ग्राउंडेड एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मैनी पायलट्स वेंट ऑन स्ट्राइक. पैल्पा ने ये ऑब्जेक्शन रेस किया था कि अगर पायलट्स को के लिए स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया बनाया गया है या उनको ग्राउंड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ फेक लाइसेंसेस, तो PIA की मैनेजमेंट पोस्ट के लिए भी स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया सेट किया जाए, क्योंकि होता यह है कि बेशतर हायरिंग पॉलिटिकल एफिलिएशंस की बिना पे की जाती है. इसके अलावा वर्कर यूनियन या लेबर यूनियन के हवाले से मज़ीद हम ये डिस्कस करेंगे कि आप ये ना कंसिडर करो कि लेबर यूनियन फॉर्म करना कोई इलीगल एक्टिविटी है. ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एक इदारा है जो लेबर के राइट्स के हवाले से स्टैंडर्ड्स हो गए, पॉलिसीज़ हो गए, प्रोग्राम्स हो गए, उनको डिज़ाइन करता है. एंड ILO हैज़ ग्रांटेड द राइट टू एम्प्लॉयज़ टू फॉर्म अ लेबर यूनियन. In a nutshell, we can say that labor unions are formed to ensure timely compensation and safe working conditions. Next जो image हमारे सामने है, which is image number 8, you can see some people from different walk of life. They are gathered at a single place. Just guess who is the stakeholder.
Yes, you are right. That is community. कम्युनिटी हमारा जो है वो नेक्स्ट स्टेक होल्डर है. अब अगर हम कम्युनिटी की बात करें और CSR या SR विच स्टैंड्स फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका तस्करा ना हो, ये कैसे मुमकिन है? बट आई वोंट कोट द एग्जांपल्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और CSR एक्टिविटीज़ deliberately because there are lot of programs, lots and lots of programs initiated by MNCs which you are already aware of. हम जिस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे दैट इज़ बेसिकली द CSR एंड SR कॉन्सेप्ट, यानी SR या CSR कॉन्सेप्ट आखिर किस चीज़ पे बेस करता है, इस पे हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे. SR or CSR activities basically they are based on triple bottom line. Now the question is ये triple bottom line या 3 P's क्या है? The first P here is profit, यानी कंपनी जो प्रॉफिट अर्न करती है, इकोनॉमिकल फैक्टर ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, उसी में से वो अपनी CSR एक्टिविटी परफॉर्म करेगी ताकि ये शो ना हो कि ऑर्गेनाइजेशन और द कंपनी इज़ अ ग्रीडी सिटीज़न, या वो बहुत ज़्यादा सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड है या सोसाइटी के वेलबींग के लिए कुछ नहीं करना चाह रही. The second P is people, which is the social factor, and the last P is planet, which is the environmental factor. अब आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये भी बताते चलें कि बेसिकली ISO 26000 की गाइडलाइंस मौजूद है विच कैन बी अप्लाइड बाय एवरी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर सेक्टर और साइज़. बेसिकली ये कोई फिक्स्ड रिक्वायरमेंट्स नहीं है, ये सिर्फ गाइडलाइंस हैं और कंपनीज अपनी नीड के अकॉर्डिंगली, अपनी कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली इन गाइडलाइंस को कस्टमाइज़ भी कर सकती हैं. मज़ीद ये कि अगर कोई कंपनी ISO 26000 की गाइडलाइंस को फॉलो करती है तो उसको पब्लिकली एडवर्टाइज़ भी कर सकती है. बट द पॉइंट टू पॉन्डर इज़ जब आप एडवर्टाइज़ करेंगे तो उसके लिए आपने कुछ अप्रोप्रिएट वर्डिंग्स का ख्याल रखना है. लाइक यू कैन नॉट मैंशन these words या these phrases like we are certified according to, क्योंकि सर्टिफिकेशन तो ये है नहीं इसलिए आप सर्टिफाइड लिख नहीं सकते. कंपनी इज़ वेरीफाइड अकॉर्डिंग टू या कंपनी इंश्योर्स कंप्लाइंस विद, तो ये तमाम की तमाम इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स हैं या प्रोहिबिटेड वर्ड्स हैं विच कैन नॉट बी यूज ड्यूरिंग एडवर्टीजमेंट. अब सवाल ये पैदा होता है तो फिर अप्रोप्रिएट वर्ड्स क्या है जिसको आप अपनी एडवर्टीजमेंट में यूज़ कर सकते हैं ताकि कंपनीज़ की गुडविल क्रिएट हो. यू कैन मैंशन कंपनी is inspired by ISO 26000. Company is based on ISO 26000. Company follow the guidelines provided by ISO 26000. और नीचे आपको स्लाइड में एक स्टेटमेंट भी नज़र आ रही होगी, एक एग्जाम्पल भी नज़र आ रही होगी which the companies can use in their official documents. Like our companies follow the guidelines of ISO 26000 as a reference document to integrate social responsibility into organizational objectives. यहाँ पे एक डिफरेंस और डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है. यू मस्ट बी वंडरिंग कि हमने CSR तो सुना था, तो ये SR क्या है? SR बेसिकली स्टैंड्स फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. SR एक जेनेरिक फ्रेमवर्क है, एक जिसे कहना चाहिए जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है और CSR इसके अम्ब्रेला के अंडर आता है. बेसिकली CSR SR CSR उस वक्त बन जाता है जब प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी रेवेन्यूज़ अर्न करने के बाद सोसाइटी की या कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए या वेलबींग के लिए कुछ काम करे अपने प्रॉफिट्स में से. सो दैट SR बिकम्स दी CSR. अदरवाइज SR इज़ बेसिकली द जनरल फ्रेमवर्क जो कि आपकी NGOs भी फॉलो कर सकती हैं, जो कि आपके कुछ एथनिक ग्रुप भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि आपके माइनॉरिटी ग्रुप्स भी फॉलो कर सकते हैं. और CSR इज़ बेसिकली कंडक्टेड बाय या कैरिड आउट बाय कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशंस और इंडस्ट्री players. The next stakeholder is very easy to guess and it is self-explanatory. Yes, it is none other than but media, or I'll particularly focus on the examples related to social media because it is an emerging trend nowadays. You can see one ad over here. This was basically the ad by Sana and Safinas, which was shot in Kenya in 2018 and it got viral on social media. But it faced backlash because it was perceived by the viewers as promoting racism because Africans seem to be used as props in the ad. तो इसके बाद bottom line क्या है? Bottom line ये बनती है कि does it affect the business? इस तरह की racism ads में दिखाना, yes of course it created negativity for the brand.
Second example is related to again social media, and here we will discuss the impact of reviews by bloggers or vloggers. In other words, we call it blogging effect, और इसका impact consumer buying behavior पे कैसे generate होता है. Basically, bloggers help to form the public opinion. So the bottom line is it affect the business. This was regarding the media as a stakeholder. Now we have the next image, which is image number 10, or the name of a whistleblower is mentioned inside the circle. What is your guess? I pause for a while so you can guess who is the next stakeholder. Yes, you are right. It is none other than but pressure group. और प्रेशर ग्रुप पे हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल कैम्ब्रिज एनालिटिका की. कैम्ब्रिज एनालिटिका के एक एक्स एम्प्लॉय ने डिस्क्लोज किया है कि 2016 यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में ट्रम्प को इलेक्शंस विन करवाने के लिए फेसबुक के यूज़र्स का, मिलियंस ऑफ फेसबुक यूज़र्स का जो डेटा है उसका जो डेटा है वो हैक किया गया. उनकी प्रोफाइल्स को देख के पॉलिटिकल एड्स, पॉलिटिकल कैंपेन्स लॉन्च किए गए. और क्या हुआ है इस इंसिडेंट के बाद? आफ्टर दिस इंसिडेंट, स्टॉक प्राइसेस ऑफ फेसबुक नॉट ओनली फेल बट यूजर्स स्टार्टेड टू बॉयकॉट फेसबुक, and even Zuckerberg was testified before Congress. So the bottom line is प्रेशर ग्रुप्स भी बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं और बिजनेस पे उससे नेगेटिव इम्पैक्ट जनरेट होता है. सेकेंड प्रेशर ग्रुप है हैकर्स का, विच इज़ अगेन द ट्रेंडिंग और द बज़ वर्ड नाउअडेज. अगस्त 2020 में ISPR ने रिपोर्ट किया है कि साइबर अटैक was carried out by Indian intelligence agencies. I repeat again, in August 2020, ISPR reported that cyber attack was carried out by Indian intelligence agencies. गवर्नमेंट और मिलिट्री ऑफिसर्स के गैजेट से डेटा हैक करने की कोशिश की गई है. यही नहीं बल्कि गवर्नमेंट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की वेबसाइट्स को भी हैक करने की कोशिश की गई है. बट ऑन अ पॉजिटिव नोट इट वॉज रेक्टिफाइड टाइमली. तो बॉटम लाइन ये है कि स्टेट इंस्टीट्यूशंस आर ऑल्सो अफेक्टेड ड्यू टू सच ऑफेंसिव एक्ट्स ऑफ प्रेशर ग्रुप्स, और इससे आपका बिजनेस भी इम्पैक्ट होता है ईदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली. Okay ji, now we have the next image, which is image number 11. Here you can see a scenario of a race. One person has surpassed or succeeded in a race and many players have left behind. Now you can easily imagine who is the stakeholder. Yes, you are right, this is none other than but a competitor. तो next जो stakeholder है जिसको हम discuss करेंगे वो है कंपैटिटर. कंपैटिटर किस तरीके से बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, इसको डिस्कस करने के लिए हमारे पास कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री से ट्रेडमार्क केस है जिसको हम डिस्कस करेंगे. नेस्ले वर्सेस मॉन्डलीज. नेस्ले का ब्रांड है किटकैट और मॉन्डलीज का ब्रांड है, ये जो आपको ऊपर रैपर या ऊपर प्रोडक्ट नज़र आ रहा है ग्रीन और येलोइश रैपर में, दैट इज़ बेसिकली इट्स आई थिंक डिफ़िकल्ट टू प्रोनाउंस, लेकिन इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन मैं आपको बता देती हूँ. इट मीन्स क्विक लंच. अच्छा जी, व्हाट इज़ द केस ऑल अबाउट? नेस्ले वर्सेस मॉन्डलीज या किटकैट वर्सेस क्विक लंच, इनके दरमियान का जो ट्रेडमार्क डिस्प्यूट केस है वो क्या है और इससे जो बिज़नेस है दोनों का कैसे इम्पैक्ट होता है उस पर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं. नेस्ले बेसिकली क्लेम दैट द फोर फिंगर बार शेप जो चॉकलेट वेफर डिज़ाइन है, दैट इज़ देयर मार्क ऑफ डिस्टिंक्शन. आई अगेन रिपीट, नेस्ले क्लेम दैट द फोर फिंगर बार शेप चॉकलेट वेफर डिज़ाइन is their mark of distinction, and initially it was granted the trademark, but Mondelez came forward and because it is also having the product with the same design, the case was then reopened by European Union Court of Justice. यूरोपियन यूनियन कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये डिसाइड किया कि एक सर्वे कंडक्ट करवाया जाएगा यूरोपियन यूनियन के तमाम तरह कंट्रीज़ में और ये देखा जाएगा कि वेदर किटकैट इज़ रिकग्नाइज्ड थ्रू दिस पर्टिकुलर डिज़ाइन और नॉट. रिजल्ट्स जो है वो बिल्कुल किटकैट के फेवर में ना आए बल्कि किटकैट के बिल्कुल अगेंस्ट आए. द रिजल्ट्स वर नॉट इन फेवर ऑफ किटकैट बिकॉज ओनली फ्यू मेंबर स्टेट्स और फ्यू मेंबर कंट्रीज ऑफ यूरोपियन यूनियन कैन recognize KitKat with this particular
design. As a result, Mondelez being a competitor अफेक्ट द बिजनेस और किटकैट को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल डैमेजेस भी फेस करने को मिले. तो कंपैटिटिव मूव इस तरीके से आपके बिजनेस को अफेक्ट करती है. The next image, as you can easily see in the circle, is like of two international organizations, or a globe is shown with a balance sign. Any guess what we have to talk about? Yes, the next stakeholder or the very last stakeholder is basically the international body. International body के बारे में हम डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि इंटरनेशनल बॉडी किस तरीके से बिजनेस को इम्पैक्ट करती है. सबसे पहले जो एग्जांपल हमारे सामने है, दैट इज़ यू कैन ईजिली सी द लोगो ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और वी कॉल इट इन अदर वर्ड्स WTO. एक बात जो नोट करने की है वो ये कि पाकिस्तान भी WTO का मेंबर है या WTO का सिग्नेटरी है. इसका क्या मकसद हुआ? WTO के जो रूल्स हैं वो पाकिस्तान पे भी अप्लाई होते हैं. अब थोड़ा सा डिस्कशन को फर्दर एक्सटेंड करते हैं. लम्हा फ़िक्रिया ये है कि WTO प्रोटेक्शनिज्म को डिस्करेज करता है. इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सब्सिडीज़ देकर प्रोटेक्ट नहीं कर सकती. मज़ीद ये कि कस्टम ड्यूटी या टैरिफ्स को काफ़ी हद तक WTO की वजह से रिड्यूस कर दिया गया है. WTO के रूल्स फ्री इकोनॉमी या फ्री ट्रेड इकोनॉमी पे ज़्यादा बात करते हैं, जिसकी वजह से ट्रेड को बहुत ज़्यादा ईज़ के साथ, कन्वीनियंट के साथ मुमकिन बनाया जाए. इसलिए कस्टम ड्यूटी या टैरिफ्स को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर दिया गया है. इसका नुकसान ये होगा कि पहले तो डोमेस्टिक प्लेयर हर्ट होगा आपका, और टैरिफ्स ना मिलने की वजह से पाकिस्तान जैसे ममालिक, पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ फॉरेन रिजर्व्स अर्न नहीं कर पाएंगे, उनकी इनकम जनरेट नहीं हो सकेगी. सो बॉटम लाइन क्या है? द बॉटम लाइन इज़ लोकल बिजनेसेस इन पाकिस्तान विल बी अफेक्टेड बाय द मूव ऑफ WTO. सेकेंड एग्जाम्पल जो हमारे सामने है, दैट इज़ ऑफ फैटिफ. फैटिफ किसे कहते हैं या फैटिफ क्या है? फैटिफ इज़ बेसिकली द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. अब हम देखते हैं कि फैटिफ जो एक इंटरनेशनल बॉडी है, उसके पाकिस्तान पे क्या इम्प्लिकेशंस ड्रॉ होंगे. FATF is basically a global watchdog, and it monitors illegal activities like money laundering and terror financing. जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है तो पाकिस्तान अभी ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान इज़ इन द ग्रे लिस्ट. मज़ीद ये कि पाकिस्तान के लिए फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस का ख़दशा है अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ज़्यादा अरसे तक रहता है. वो फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान या पाकिस्तान के बिजनेसेस के लिए क्या हो सकते हैं? नंबर 1, फाइनेंशियल एड बाय IMF एंड वर्ल्ड बैंक कैन बी अफेक्टेड. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको हम FDI कहते हैं, उसके भी डिक्रीज़ होने का खदशा है. फिर बैलेंस ऑफ ट्रेड भी डेफिसिट हो सकता है. नेक्स्ट ये कि पाकिस्तान के जो बैंकिंग चैनल्स हैं, दे कैन बी एट रिस्क बिकॉज इट कैन अफेक्ट द रेमिटेंसेस ट्रांजैक्शंस विद फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि पाकिस्तान के बैंकिंग चैनल्स पे फिर कोई भी रिलाई नहीं करेगा. तो बॉटम लाइन क्या डेवलप हुई? बॉटम लाइन ये है कि फैटिफ बीइंग एन इंटरनेशनल बॉडी कैन अफेक्ट पाकिस्तान एंड इट्स बिजनेसेस. जो नेक्स्ट इमेज हमारे पास है या जो नेक्स्ट इंटरनेशनल बॉडी हमने डिस्कस करनी है और उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के बिजनेसेस पे देखना है, दैट इज़ बेसिकली ओपेक. ओपेक क्या है? ओपेक एक कार्टेल है, और कार्टेल का मकसद होता है एसोसिएशन या ग्रुप ऑफ इन्फ्लुएंशियल पीपल. OPEC stands for oil producing countries, like it stands for Organization of Petroleum Exporting Countries. तमाम मुल्कों की जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सप्लाई है या प्राइसिंग है, उसको ओपेक ही डील करता है या कंट्रोल करता है. खैर, आपकी नॉलेज के लिए मैं ये भी बताती चलूँ कि अब ओपेक प्लस भी फॉर्म हो चुका है, जिसके अंदर रशिया और मैक्सिको भी ऐड हो चुके हैं. अब सवाल ये रेस होता है कि बिजनेस पे या बिजनेसेस पे ओपेक का इम्पैक्ट क्या हो सकता है. बेसिकली अगर हम बिल्कुल रीसेंट सिचुएशन देखें तो कोविड-19 में बिजनेसेस का डाउनफॉल आ गया था. मतलब ये कि डिमांड ऑयल प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, क्योंकि ट्रैवलिंग नहीं हो रही थी, शिपिंग नहीं हो रही थी, सब रुक गया था. इसके साथ साथ अगर हम इकोनॉमिक्स का एक सिंपल रूल डिस्कस करें, जिसमें ये डिस्कस किया जाता है कि अगर आपकी प्रोडक्ट की डिमांड कम हो रही है तो सप्लाई को अगर आप कट डाउन कर दें या कंट्रोल कर दें तो प्राइसेस को स्टेबल किया जा सकता है. लेकिन रशिया ने ऐसा नहीं किया. ऑयल प्रोडक्शन
की जिसे कहना चाहिए ऑयल प्रोडक्शन को कट डाउन नहीं किया, बल्कि ऑयल प्रोडक्शन की सप्लाई को इंक्रीज़ कर दिया, जिसकी वजह से ओपेक कंट्रीज़ ख़ास तौर से सऊदी अरेबिया को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा और नतीजा ये हुआ कि ऑयल प्राइसेस जो है वो नेगेटिव तक चली गई, या पर डॉलर जो बैरल ऑयल प्राइसेस थी वो नेगेटिव डॉलर्स में चली गई। रशिया ने बहरहाल ऐसा क्यों किया, सवाल ये पैदा होता है, क्या रशिया को पूरी कोविड-19 सिचुएशन का इल्म नहीं था? बहुत अच्छी तरीके से इल्म था, लेकिन उसने सिर्फ इसलिए ऐसा किया कि वो यूएसए के साथ ऑयल वॉर चाहता था। Because USA has become the number one oil producing country after introduction of shale technology. 20-25 साल पहले यूएसए एक ऑयल इम्पोर्टिंग कंट्री था, लेकिन आज ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री बन गया है। सो द इम्पैक्ट ऑफ ओपेक इज़ ह्यूज एंड इट्स अफेक्ट्स द बिजनेसेस वर्ल्ड वाइड। ठीक है जी, तो ये हमने देखा ओपेक का इम्पैक्ट। ज़ाहिरी बात है ओपेक का इम्पैक्ट पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशंस पीपीएल या ओजीडीसीएल पे भी या के इलेक्ट्रिक जैसी कंपनीज़ पे भी पड़ा है, और जिससे आपका जो कस्टमर है या आपके जो बिजनेसेस हैं वो बहुत बुरी तरीके से मुतासिर हुए हैं। जो नेक्स्ट एस्पेक्ट हमने डिस्कस करना है इंटरनेशनल बॉडी के हवाले से, दैट इज़ यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। 17 के करीब एसडीजीज, जिसका मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो है वो बनाए गए हैं, यूएनओ ने बनाए हैं, और हर मुल्क पे ये गोल्स लागू होते हैं, और हर मुल्क ने ये गोल 2030 तक अचीव करने हैं। अब सवाल ये है कि इमर्जिंग इकोनॉमीज़ या डेवलपिंग इकोनॉमीज़ लाइक पाकिस्तान अकेले तो ये गोल्स अचीव कर नहीं सकते, क्योंकि इतने रिसोर्सेज नहीं हैं। सो दे कैन बी अचीव थ्रू पीपीपी, दैट इज़ पब्लिक private partnership. So the bottom line is private businesses in Pakistan will get the opportunity to flourish. और इस तरह से आपके जो प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं या बिजनेसेस हैं उनको भी थ्राइव करने का मौका मिलेगा पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू। तो इस एग्जांपल में हमने ये देखा कि डिफरेंट इंटरनेशनल बॉडीज़ लाइक डब्ल्यूटीओ, फैटेफ, ओपेक और यूएनओ किस तरीके से बिजनेसेस को इम्पैक्ट करती हैं किसी भी कंट्री के। लास्ट में हम ओवरव्यू करेंगे कि हमने पार्ट ए एनवायरनमेंट यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या क्या कंपोनेंट्स डिस्कस किए। सबसे पहले हमने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को डिफाइन किया विद द हेल्प ऑफ अ मेटाफर, जिसमें हमने ग्लोब या वर्ल्ड का मेटाफर यूज़ किया था और ऑर्गेनाइजेशन को उसका सबसेट बनाया था। बाकी जो एक्सटर्नल एंटिटीज़ हैं बियॉन्ड द ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्री वो हमने कॉइन की या उनको हमने टर्म किया एक्सटर्नल एनवायरमेंटल एंटिटीज़। फिर हमने स्टेक होल्डर्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा। 11 to 12 हमने स्टेक होल्डर्स पढ़े, उनकी बॉटम लाइन को डिस्कस किया और उनके लिए वैल्यू एडिशन फैक्टर कैसे क्रिएट किया जा सकता है इसको हमने बहुत ज़्यादा एट लेंथ डिस्कस किया। पार्ट बी में हम डिस्कस करेंगे पेस्टल एनालिसिस। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर दिस पार्ट ए।